technical session of program Golden Chacha, and I welcome you all, the participants, the speaker of the day, Divyaji, and obviously the special addressee Neeraj for another session of Golden Chacha. So first of all, I would like to invite Neeraj, who is a fellow chartered accountant, as well as registered valuer. And after a good corporate exposure in Wipro, he has started his own practice in the domain of final analysis. I will have to at Tata and his offices. So to start with, I will invite Rachel to have a special address to our audience, as well as the speaker for the day. Thank you, Amit ji. And welcome Divya ji also. It's a great privilege for me to be a special invitee for this session. And it's a topic which is very near to my heart. How to enter the corporate world, how to get raised up for the corporate world. I would start with a small incident which happened with me also. So in 2012, I passed my examinations and I had more or less decided that I will be starting my own practice. But उसी टाइम पे Calcutta campus हो रहा था and I thought, okay, why not to sit and get some experience out of it. And the few companies which had selected me for the interview, one of them was Wipro. And मैंने Wipro का interviews दिए from G group discussions. Then I got selected for the personal interview round, and post the personal interview round, I actually got an offer letter. And simply speaking, the offer letter was so great at that point of time कि मैं practice के बारे में एक बार भूल गया, and I accepted the offer. And from there my corporate journey started. And मुझे ड्राफ्ट किया गया बैंगलोर के लिए, मैं बैंगलोर चला गया, मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजा गया. And to be honest, I did my practice from articleship from a very mid-sized firm जहाँ पे we have worked mostly on taxations and all, GST, VAT filings and all. I never had done anything remotely similar to planning. But मुझे कुछ idea नहीं था. I have never worked on MIS database, a huge database of company like Wipro. And so I felt after 5 to 6 months, I felt the need कि this is not an area for me. And what am I doing here? So this was a lesson for me that first of all, I wanted to join practice, but मैंने corporate join कर दिया just because मैं campus में select हो गया. And after selection also, I did not inform them about my choice कि मेरा area of expertise क्या है, what is the area of interest. मुझे जो मिला मैं चला गया. So as people who have just qualified, people who are just entering into your corporate world, you should know your expertise. You should have certain expectations from you because all of you have some worth. You have qualified your examinations. So you need to be braced up. Obviously, you need to be flexible, but you need to know that what is there in the corporate world. Because अभी तक जो articleship days पे और हम जो सोचते थे ना और जो corporate world है, these are two different ball games. पूरा complete अलग different challenge है. Obviously, दिव्या जी आप लोग को better बताएंगी how to prepare and everything about it. But मैं आपको just ये बता रहा हूँ कि be open, enter the corporate world with an open mind, but know what you are worth. मैंने practice start किया post 1 year of doing corporate. I thought, okay, corporate life is not for me, and then I went into practice. I started my practice again in Calcutta. And Calcutta के बाद 3-4 years later ही मैंने फिर कुछ साल बाद मैंने फिर valuation के भी एग्जाम्स पास किए और अभी मैं valuation and practice कर रहा हूँ. So this can be repeated in your corporate world also. Corporate में भी also when you are entering, you need to have certain tools so corporate में भी there can be certain tools which you will require, which Divya ji will tell you, I think, how to brace up yourself to enter the corporate world. And always be flexible enough that try to add on whatever you want to achieve, because corporate maybe there's a lot of scope for specialization. So once you start your corporate life, uske baad 2-3 years, 4 years mein try to re-evaluate, add certain more tools to your CVs, and you will see that the path to success is unlimited. You have a lot of ways, you can achieve a lot of things, but you need to have the flexibility and you need to give time and efforts. Divya ji हमारे साथ आज हैं. Divya ji, obviously she has a lot of experience in this area, and I know that today's session she will enlighten you all.
with these all the tools which you require to brace up to get prepared for the corporate life. And with this, I think Divya ji, all to you, please, ma'am. Hey, thanks, Neeraj. Thank Thanks you a lot. so much, Neeraj ji, for giving a introductory and addressing for the day to the audience. So, to go further, I will like to invite the speaker of the day, Divya Bengali ji, to speak on the very relevant topic for all the students who are getting passed out from the CA fraternity or who have already joined the corporate but doesn't know how to, choose their career path, how to go about it, what are the milestones they should set for themselves, as well as how to achieve those, and even the preparation of basic things about the interview, about the curriculum, about the choice of company and all those things. I am sure Divyaji will enlighten us with all these things. So, very warm welcome to Divyaji on behalf of YAYAC, all the participants, as well as myself, Amita Gawal. So, over to you. Thank you Hey, so much. thank you. Thank you, Amit. Thank you, Neeraj. I think it's kind of, when we say golden charja, I think it's actually a golden opportunity for us because, अभी 3-4 साल पहले तक हम उस साइड होते थे and now we are panelists. तो I think बहुत बड़ी बात फील होती है कि आप अपने guidance से, these kids, I think, I'm assuming that the audience here is somebody who's preparing for exams and you're trying to, navigate your path in the corporate world, right? Guys, just keep this session very interactive. I think I don't want to, just it wanted to be a monologue कि मैं बोलते जा रही हूँ. आपको जहाँ भी doubts हो, you can raise your hand or maybe speak up. So guys, a little brief about myself. 5 years into the corporate journey, not a very long period, but yes, I've had my share of struggles. Because क्या होता है कि हमारे मतलब इंडिया में अगर आप देखो तो कोई भी जैसे सीए अगर आप कर रहे हो तो मोस्टली आप सीए क्यों करते हो कि चाचा का बेटा कर रहे हैं, भाई का बेटा कर रहे हैं और अच्छा कोर्स है, आपने कर लिया तो सबको लगेगा कि आप तोप हो, मतलब इतना डिफिकल्ट कोर्स है ये करना, इसको क्लियर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट. बट प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था. So basically a brief background. I am a chartered accountant, as you all know. I am working with Hindustan Unilever Limited. अगर आप थोड़ा भी corporate world में जानकार रखते होगे तो HUL is a dream company to work for and so was it for me. And I didn't initially landed in HUL, मतलब एकदम से I was not in HUL. मैंने अपना share of struggle किया, interview prepare किया, सब कुछ किया. And today I'm in HUL and the world's largest FMCG, if you guys know. And trust me, every day today feels like a dream working for that company. Monetary compensation wise, opportunities wise, travel wise, हर चीज wise, the respect that you get there, I think बहुत different होता है. तो मैंने भी सीए इसलिए कर लिया था कि मेरे दीदी ने मेरी कजिन ने किया था, मेरे पापा ने बोला तुम सीए क्लियर कर लो, मैंने सीए क्लियर कर लिया. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका रिजल्ट आ गया और एक हफ्ते बाद एक हफ्ते तो आपके पूरे सेलिब्रेशंस में जाते हैं कि यार सीए बन गए, हर जगह स्टेटस वगैरह चेंज कर दिया. बट उसके बाद व्हेन रियलिटी स्टार्ट्स हिटिंग इन, मतलब इतने सारे लोग, पहले आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो टॉप हूँ, मैंने सीए कर लिया, मेरे को लाइफ में कुछ पीछे देखना ही नहीं है. बट जब आप इंटरव्यू मार्केट में जाते हो, राइट, मतलब अभी व्हेन यू सी स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब वो जॉब में जाएंगे. 85% ऑफ द क्राउड दैट इज क्लियरिंग सीए, मे बी मोर देन दैट, वो प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. अगर आपका एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ द क्राउड इज गोइंग इनटू दैट ऑप्शन कि यार शुड आई सेट इट अप ऑन माय ओन, डू आई हैव दैट कैपिटल. तो लोग हमेशा, मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है एंड स्टेटिस्टिक्स भी अगर आप देखो आईसीआई की, 95% लोग अपना जॉब मार्केट ही एक्सप्लोर करते हैं, राइट. तो जब आपका क्लियर हो गया एंड आपने सब जगह स्टेटस अपडेट वगैरह सब कर दिया, एक हफ्ते बाद वो रियलिटी हिट इन करती है कि अब क्या करूं, मतलब सीए तो बन गए, अब जॉब का क्या. मतलब अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो जो सेल्फ मेड लोग होते हैं जिनके पापा का प्रैक्टिस नहीं है या मामा का प्रैक्टिस नहीं है, तो वो अपने लिए कैपिटल इकट्ठा करना चाहते हैं. आई हैव फ्रेंड्स हु आर वर्किंग फॉर 5-6 years एंड इवेंचुअली दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन. बट एक जॉब का आपको एक एक्सपीरियंस सबको ही बोलता है लेना चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत डिसिप्लिन बनते हो, बहुत कुछ चीजें सीखते हो, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंटायरिटी रन करती है, पीपल मैनेजमेंट, एक्सेल मैनेजमेंट, सब कुछ चीजें आप जॉब में सीखते हो. तो ये जॉब पाने के लिए
आपको क्या करना है, मतलब आपने सीए क्लियर कर लिया, वेरी गुड, एक तो उसका स्ट्रगल पूरा अलग रहता है। सीए क्लियर करने के बाद ट्रस्ट मी, अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि आप सीए बन गए आपकी लाइफ सेट है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका असली स्ट्रगल, आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपका असली स्ट्रगल स्टार्ट्स व्हेन यू बिकम अ सीए, राइट। मतलब क्योंकि आपको तब आप देख रहे हो कि उसकी जॉब लग गई, उसकी लग गई, उसकी ड्रीम कंपनी में लग गई, तो वो एक अलग एंग्जाइटी आपको स्टार्ट होने लग जाएगी वंस आपका क्लियर हुआ है। तो बेसिकली गाइज, आपका एक बार सीए हो जाए, उसके बाद आपको क्या चीजें करनी है कि आपको प्रॉपर जॉब लैंड हो। एंड जैसे क्या होता है ना, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पहली जॉब इंस्टीट्यूट के कैंपस प्लेसमेंट से ही लगी थी, एंड आई वाज नॉट वेरी चूजी। मतलब जब आप क्लियर करोगे ना, आपको भी ऐसा होगा, क्योंकि आप जॉब मार्केट की हालत इतनी खराब देखोगे, आपको ऐसा लगेगा यार जो भी मिल रहा है, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि 6 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं, ले लो एक बार एटलीस्ट, एक ऑफर लेटर तो है ना हाथ में लोगों को दिखाने के लिए कि यार मैंने ज्वाइन कर लिया है। बट गाइज ऐसा बिल्कुल मत करना। लाइक नीरज राइटली सेड, बी चूजी। मतलब गेटिंग द राइट जॉब इज एज इम्पोर्टेंट एज मैरिंग द राइट पर्सन इज। मतलब आप सोचोगे कि यार मैं 6 लाख रुपए मिल रहे हैं साल के, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, घर पे 2 महीने बर्बाद होंगे, इससे अच्छा मेरे पास लाख रुपए सैलरी आ जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना, बी वेरी चूजी। तो व्हाट व्हाट आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम्स, राइट। तो देखो, जब आपका एग्जाम हो जाता है, मतलब वंस यू क्लियर एग्जाम्स, रिजल्ट्स आने में 2 महीने लगते हैं। सम पीपल नो कि क्लियर नहीं होगा, एंड सम पीपल वेरी वेल नो कि क्लियर होगा। एंड वो भी आप बहुत श्योरिटी से नहीं बोल सकते, बिकॉज आईसीआई का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट आप पास होगे कि नहीं। बट अगर आप श्योर हो, या आपको थोड़ा भी लगता है कि आप क्लियर कर लोगे, सो गाइज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना रेज्यूम बना के रखो। बिकॉज क्लियर होते ही योर फर्स्ट थिंग इज टू सर्क्यूलेट योर रिज्यूम लाइक क्रेजी। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं रिजल्ट आने के बाद एक हफ्ते चिल करके आराम से अपना सीवी बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो आप बहुत गलत उसमें हो, क्योंकि लोग इतना फास्ट मूव करते हैं ना। मतलब द डे यू क्लियर, द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट हियरिंग पीपल कि मेरी तो जॉब लग गई यार, मेरी डिलॉयट में लग गई यार, मेरी आईटीसी में लग गई। एंड वो तब आपको इतना पीछे पुल कर लेगा ना कि यार मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई वी आर होल्डिंग दिस सेशन, बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे एंड वी वर थिंकिंग। तो मुझे सुमित ने बोला कि यार वी आर ऑल इन प्रैक्टिस, बट यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू आर 6 years in the corporate world, and I think it's the best that we have this session कि बच्चों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए to get into this corporate world instead of wasting your time। मतलब आप एग्जाम के बीच में और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके पास 2 महीने रहते हैं, इनफैक्ट उस टाइम पे आपको कैसे अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना है। ऑफ कोर्स यार बहुत बड़ा स्ट्रेस है एग्जाम खत्म होना है, एंड यू डिजर्व दैट ब्रेक, मच नीडेड ब्रेक। बट पूरे 2 महीने 1.5 महीने वेस्ट मत करो, अपना रिज्यूम रेडी रखो। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक यार, आप एक रेफरेंस रिज्यूम लो, अपने स्किल्स को डालो। आप अगर रेफरेंस रिज्यूम्स देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मुझे और क्या एक्टिविटीज अपने रिज्यूम में डालने के काबिल बनना है, राइट। सो आई थिंक वो चीज एक आपको हमेशा रेडी रखना है, आपका रिज्यूम रेडी रखना अच्छे से प्रॉपरली। एंड डोंट मेक इट कि आप 2-3 पेजेस का रिज्यूम बना रहे हो। आपने आर्टिकलशिप में अगर नॉर्मल वाउचिंग भी की है तो वो भी डाल रहे हो, नहीं, कीप इट वेरी क्रिस्प। एक पेजर होना चाहिए रिज्यूम, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी ऐसा किया था, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस 2-3 पेजेस में बना के रख दिया था, बट नोबडी रीड्स इट। एवरीबडी वांट्स अ क्रिस्प रिज्यूम जिसमें आप की पॉइंटर्स, आपके क्या क्या टैलेंट्स है आप लिखो। एंड देखो, जो हायर कर रहे हैं ना, वो एक पेज में समझ जाएगा कि आप बना के लिख रहे हो या आपने एक्चुअल में कुछ काम किया है। तो डोंट डू दैट, ऑलवेज कीप योर रिज्यूम एज अ 1 पेजर। आप एक 1 पेजर रिज्यूम बनाओ एंड कीप दैट रेडी, राइट। और जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने क्लियर कर लिया, स्टार्ट सर्कुलेटिंग इट। दीदी भैया जो कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, देना स्टार्ट कर दो। सेकेंड थिंग इज गाइज लिंक्डइन, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे लिंक्डइन पे तब एक्टिव होते हैं जब उनको जॉब चाहिए, राइट। डोंट डू दैट, be very alert and active on LinkedIn. You should be connected to your institute. इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, जनरल अफेयर्स में क्या हो रहा है, यू शुड हैव एन ओपिनियन एंड यू शुड बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। क्योंकि लिंक्डइन में जितनी अपॉर्चुनिटीज आती है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट। बहुत कम लोगों का रिसोर्स होता है। जैसे मैंने जब HUL ज्वाइन किया तो मुझे बहुत लोग ने बोला कि डू यू हैव समबडी वर्किंग देयर, आपने कैसे किया HUL में, कैसे आपको जॉब मिल गई। सो आई हैव बीन वर्किंग इन HUL फॉर 2 years नाउ। पहले मेरा इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट से मुझे एक फेयर अच्छी पैकेज मिली थी। इट वाज अ कैलकाटा बेस्ड कंपनी, केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई वर्क देयर फॉर 2.5 years एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरा कैलकाटा में देर इज दिस प्रॉब्लम कि आपका पैकेज नहीं बढ़ता है। एंड बिकॉज आई हैड अ कॉन्स्ट्रेंट दैट टाइम कि मुझे कैलकाटा से मूव नहीं करना है, सो आई वाज स्टक टू दैट पैकेज। बट
देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड आई थॉट यार HUL में जॉब लग गई तो पैकेज वाइज अपॉर्चुनिटीज वाइज सब कुछ सेट होगा. सो आप ये स्टार्टिंग से कर सकते हो. मुझे ये आइडिया नहीं था. मतलब जब मैंने CA एग्जामिनेशन क्लियर किया मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे खुद जाके CV डाल दूं. आई वाज टू डिपेंडेंट यार. कोई मेरा CV डाल दो, कोई मेरे को इंटरव्यू अरेंज करा दो. मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि मेरे को इंटरव्यूज भी नहीं लैंड हो रहे थे. राइट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू माई थर्ड थिंग, लाइक आई सेड, आप रिज्यूम प्रिपेयर रखना, आप अपना लिंक्डइन एक्टिव रखो. और तीसरा गाइज, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ITC में जॉब चाहिए तो मैं ITC का ही इंटरव्यू में बैठूंगी. नेवर डू दैट. बिकॉज रिमेंबर दैट 4-5 इंटरव्यू जो आप पहला दोगे ना, यू विल स्क्रू अप बैडली. यू विल स्क्रू अप बैडली एंड इट्स नॉट यू, इट्स एवरीबडी. क्योंकि यू हैव जस्ट क्वालिफाइड, राइट. एंड एक मेंटल गेम होता है, राइट. आप जब इंटरव्यू देने बैठते हो ना, वो रादर देन जस्ट योर नॉलेज, बिकॉज सी एवरीबडी हैज क्वालिफाइड CA जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं. आपको बुक्स में बहुत कुछ सिखाते हैं बट मेंटल जो गेम होता है ना, वो वहां पे आपका मेंटल स्टेबिलिटी चेक करते हैं. पूरे पूरे दिन आपको बैठा के रखेंगे एंड शाम को 5 बजे 9 बजे बुला के आपको शाम को 6 बजे इंटरव्यू लेंगे. दैट इज नॉट बिकॉज दे आर वेस्टिंग योर टाइम. दे जस्ट वांट टू सी व्हाट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट इज, राइट. तो वो सारी मेंटल चीजें हैं, जो मेंटल गेम्स होते हैं, वो आपको 5 इंटरव्यू देने के बाद आएगा. मैंने 3-4 इंटरव्यू तो ऐसे स्क्रू अप किए थे ना, मैं बता नहीं सकती. मुझे लगता था कि यार CA में कैसे बन गई, मैं कैसे अभी जॉब करूंगी. मतलब व्हाट इज दिस, एवरीबडी से CA बन गए तो तुम्हें और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी बिछा हुआ रहेगा आपके सामने. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम गिव इंटरव्यूज, कहीं पे भी. इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊं कि HUL से अगर मेरे को रोल चेंज करना है ना, विद इन HUL, मतलब आई वांट टू मूव टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वहां भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा. ये नहीं है कि यार ये तो HUL की एम्प्लॉय है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये यहाँ पे कर देगी. बट नो, you have to give a proper 3 rounds of interview and then you get into another role. So giving you what the context of importance of giving interviews. मतलब आप ये मत सोचना कभी भी कि मैं एक इंटरव्यू दूंगी वो क्रैक हो जाएगा एंड माई लाइफ इज सॉर्टेड. नो, यू हैव टू गिव 4-5 इंटरव्यूज, स्क्रू अप बैडली, लर्न कि कहाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज में अटक रही हूँ मैं. मे बी मैं बोलने के स्किल्स में अटक रही हूँ, मे बी देयर सम प्रॉब्लम इन माय कम्युनिकेशन, और मे बी आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस. मतलब मुझे पता है आंसर क्या है, ये आपके साथ एग्जाम्स में भी होगा कि आप एग्जाम में पता है आंसर क्या है बट आप नहीं लिख पा रहे हो. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट दो. CA एग्जाम्स अटेंड करने से पहले आपको मॉक टेस्ट देने इसीलिए बोला जाता है कि आप एग्जाम इन्वायरमेंट में जो स्क्रू अप होता है ना, जब आप एग्जैक्ट लोकेशन पे स्क्रू अप मत करो भाई, तुम पहले अपना मॉक दे दो. इसीलिए जो कंपनीज, जिसका भी इंटरव्यू, आपको ये तो पता है यार इसमें तो मेरे को काम करना ही नहीं है. आई हैड सर्टेन कंपनीज जो मेरे को पता था कि यार ये बहुत ज्यादा, मतलब द वर्क कल्चर इज नॉट गुड, इट्स टॉक्सिक. तो बट मुझे पता था कि मेरे को नहीं देना. बट आई हैड ऑल्सो हर्ड फ्रॉम समबडी, और थोड़े बहुत वीडियोस देखे थे कि यार इंटरव्यूज देने चाहिए. एंड दैट इज व्हाई वी आर होल्डिंग दिस सेशन टू लेट यू गाइज नो कि आप जब भी क्वालिफाई कर जाओगे, जितने हो सके इंटरव्यूज देना. यस, अपने ड्रीम कंपनी में तो बहुत प्रिपेयर्ड जाना है. मतलब आपको ड्रीम कंपनी में जाना है तो आपको बैलेंस शीट, PNL, उसका कैश फ्लो, वो कंपनी क्या चीज में एक्टिव है, सस्टेनेबिलिटी वाइज वो क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो चीजें आपको जाननी है. और वो हर इंटरव्यू में आपको उतना प्रिपरेशन से जाना चाहिए. बट हाँ, मतलब अगर आप सोचो कोई फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हो, या मान लो Deloitte, KPMG ये सब में जा रहे हो, तो उनका तो बहुत प्रॉपर थ्योरेटिकल इंटरव्यूज होता है. बट व्हेन यू गो टू MNCs इन FMCGs, दे डोंट हैव दैट स्क्रू अप वाला थिंग कि वो आपको बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ के आपको एम्बैरेस करेंगे या वैसा. उनका कुछ नहीं होता है ऐसा. दे विल गिव यू प्रैक्टिकल सिनेरियोज एंड दे विल प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम. मतलब 10 लोग बैठे रहेंगे आपके इंटरव्यू पैनल में, और वो आपको एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाएंगे. एक ने पूछा, फिर दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने, और इतना बॉम्बार्डिंग होगा ना क्वेश्चन का. बट अंडरस्टैंड दैट इज टू मेक यू नर्वस. अगर आप उस सिचुएशन में नर्वस हो जाते हो एंड यू लाइक यू पैनिक ना, एंड यू विल स्क्रू अप. एंड दैट इज व्हाट यू लर्न थ्रू आउट, आफ्टर पासिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम. यू विल लर्न थ्रू आउट कि कैसे यू हैव टू कीप योर मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग, because there'll be a lot of failures, I'm telling you. मतलब ऐसा बिल्कुल मत सोचना, I keep repeating this, कि आप CA बन गए हो, आपका लाइफ सेट है, ऐसा नहीं होता है. you'll hit bottom rock. और इंटरव्यू प्रेपरेशंस के टाइम भी आपको बहुत स्ट्रगल होगा कि यार ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया तो, बट टेक इट एज एन एक्सपीरियंस. तो कमिंग टू माई पॉइंट कि जितना इंटरव्यू दे सको देना. एंड फोर्थ, आपको ICAI के कैंपस प्लेसमेंट में तो बैठना ही है. मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना, मतलब हो सकता है कि आपको जो कंपनीज आ रही है वो आपका ड्रीम जॉब नहीं है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे सिटी में अच्छी कंपनीज नहीं आ रही है, तो आई शुड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, आई शुड नॉट एनरोल फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स. आई डोंट नो इफ दे चार्ज एनीथिंग नाउ, बट हमारे टाइम एक चार्ज भी होता था. तो बहुत लोग ऐसा करते थे कि यार मैं एक्सटर्नली ले लूंगा, आई नॉट पे दैट चार्ज या वट एवर.
बट गाइज डू दैट, बिकॉज इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट आपको जो एक्सपीरियंस देगा, आई टोल्ड यू अबाउट लिंक्डइन, आई टोल्ड यू अबाउट कीप योर रिज्यूम प्रिपेयर्ड, बी इंटरव्यू प्रिपेयर्ड, बहुत सारे इंटरव्यूज देना, बट इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट कभी इग्नोर मत करना. आई थिंक यू कैन कीप नोटिंग डाउन ऑल्सो, बिकॉज इंस्टीट्यूट का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, उसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, एंड आई थिंक यू आर अलाउड टू सिट फॉर 4 इंटरव्यूज, एंड वंस यू शॉर्टलिस्ट, मतलब मेरा जैसे पहले इंटरव्यू में क्लियर हो गया था, तो आई कैन नॉट सिट फॉर अदर इंटरव्यूज, बट बिफोर इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड विद इंटरव्यू प्रोसीजर. मतलब आपने, जैसे मैंने बोला, 4-5 एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने पहले इंटरव्यू में स्क्रू अप किया है, एंड डोंट थिंक ये आपके साथ ही होता है. आई स्क्रूड अप बैडली इन माय इंटरव्यू. मतलब मेरे को तो जनरल चीजें जो उन्होंने पूछी ना, मेरे को आते हुए भी मैं नहीं बोलता, बिकॉज उन्होंने मेरे को इतना नर्वस कर दिया ना, मतलब कि यार दे पुट यू डाउन कि तुम्हें नहीं पता है, तुम कैसे करोगे, बिकॉज उनको भी ऐसा रहता है ना कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम होगा या वैसा कुछ, तो वो आपको बहुत लो फील कराएंगे. बट यू हैव टू कीप योर गेम अप दैट टाइम. आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यार ठीक है, अगर वो स्क्रू अप हो भी रहा है, डू इट कामली स्क्रू अप करके आओ, रोना धोना मत मचाना, बिकॉज आई सीन पीपल इंटरव्यू हॉल के बाहर वो रोने लग जाते हैं कि बहुत खराब हो गया. एंड आई वाज आल्सो, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आई वाज आल्सो क्राइंग कि यार क्या पूछ रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, एंड दिस एंड दैट. डोंट डू दैट. टेक इट एज अ लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब आपको पहला जॉब नहीं मिला है तो अच्छी बात है. मेरे को एक सीए फर्म का रिजेक्शन हुआ था, बट माई इंटरव्यू वॉज गुड, बट आई वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट. एंड सो कमिंग टू माई फोर्थ पॉइंट, इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट आपको अटेंड करना है, प्रॉपरली प्रिपेयर होकर अटेंड करना है. एंड प्रिपेयर, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इंटरव्यू प्रिपेयर होकर अटेंड करना है? गाइस, जस्ट बी कॉर्पोरेट को आप चूज कर रहे हो, तो जब आप किसी से मिलते हो तो यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन, कि वो क्या कर रहा है या क्या, मतलब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई इंटरव्यूड फॉर HUL इज दैट उनका कैसा प्रोसेस होता है. मतलब पहला तो उनका 3 राउंड जो होता है ना, दैट्स ऑल, मतलब वो पूरा आपको वर्चुअली होगा. देयर विल बी ग्रुप डिस्कशन, देयर विल बी MCQs, देन देयर विल बी प्रॉपर सिचुएशन बेस्ड आंसर. जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, वैसे मुझे रिकॉर्ड करना था सेशन, राइट? कि मुझे रिकॉर्ड करके मतलब एक आंसर, उन्होंने एक सिचुएशन दिया कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो एंड दिस इज समथिंग दैट इज हैपेंड, हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट, एंड वो रिकॉर्ड करके आपको आंसर देना है. तो पहले 3 राउंड में तो आपको फिजिकली कोई पूछेगा ही नहीं, राइट? फिजिकली कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं है. बट वंस यू क्लियर दीज 3 राउंड, उनके 3 राउंड और होते हैं, राइट? उनका पहला राउंड होता है जहाँ पे 3 लोग बैठते हैं आपके साथ, और वो आपको पूरा टेक्निकली ग्रिल करेंगे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से ग्रिल करेंगे, इट्स देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू शो यू दैट यू डोंट नो स्टफ. Their objective is to see how you handle these situations with grace. If you don't know something, say that I'm sorry, I don't know about it, but try. मतलब आपको कुछ situation based question पूछा and आप वहाँ पे बोल रहे हो कि यार I don't know, पता नहीं, सोचना पड़ेगा. No, that spirit to try should be there. You should, उनको ऐसा लगना चाहिए कि you're trying, because see, when you navigate the corporate world, आपको एक SOP नहीं मिलती है. जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपको एक बुक है, आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, बट आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं मिलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज. कभी आपके लोग, टीम मेंबर्स आपसे अपसेट हैं, राइट? कभी आपके यू आर अ टीम लीडर, योर टीम इज अपसेट विथ यू हैव टू हैंडल दैट मेंटली. दैट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज. मतलब इसमें आपको कहीं भी FR काम नहीं आएगा या कहीं पे भी SFM काम नहीं आएगा कि मैं अप्लाई करके उसको खुश कर दूं. That is your people management, which you learn eventually. So I think keeping your mental game strong is very important. And आपको हर समय ट्राइंग एटीट्यूड रखना है. मतलब जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं पता, I'll see, या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तो क्लियरली बोल दो यार मुझे नहीं पता है. बट दैट डज नॉट वर्क. मतलब आपको हमेशा ऐसा करना है कि लेट मी ट्राई, बट आई माइट बी रॉन्ग. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो इट. कुछ मतलब हो सकता है आपको IFRS का ही कुछ पूछे या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही कुछ पूछे एंड यू आर नॉट श्योर, बट डोंट से दैट कि मुझे नहीं पता. डोंट एकदम से मत बोल दो कि यार मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं ट्राई भी नहीं करूंगी. दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली. बहुत लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि मना कर दो, बट डोंट डू दैट. ऑलवेज शो अ ट्राइंग एटीट्यूड, राइट? उस कंपनी के बैलेंस शीट, PNL और कैश फ्लो के बारे में तो पता करके जाओ, उनके सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता करके जाओ. बिकॉज इफ यू नो BRSR का, जैसे नीरज ने बोला, ही इज डूइंग थिंग्स ऑन BRSR सस्टेनेबिलिटी, एंड दिस इज अ वेरी बिग टॉक इन बिग MNCs. मतलब मुझे, जैसे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, दे हैड आस्क्ड मी कि what do you know about HUL? You are interviewing for HUL. What do you know about its balance sheet? What do you know about its PNL? What are we working on in terms of sustainability? Plastics agenda है, बहुत चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. And when you navigate the annual report or
जो लिमिटेड रिजल्ट्स आते हैं, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स आते हैं, वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी चीजें पता लगेगी इंटरव्यू में बैठने से पहले, राइट? उसके बाद कनेक्शंस, आपके प्रॉपर कनेक्शंस होने चाहिए। मतलब आई एम श्योर यू नो आई वाज द फर्स्ट सीए फ्रॉम माय फैमिली एंड आई एम श्योर यू नो अमंग आवर अटेंडीज आल्सो काफी लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनको यू नो कनेक्शंस नहीं है। तो यू आस्क मी यार मैं कनेक्शंस कैसे बनाऊं? आई एम द फर्स्ट सीए इन माय फैमिली, आई डोंट हैव अ पापा चाचा बैकग्राउंड कि यार उन्होंने रेकमेंड कर दिया और मेरी जॉब लग गई। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है गाइस, मेरे साथ भी ऐसा नहीं था यू नो। बट आपको एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अटेंडिंग दीज सेमिनार्स, राइट? यू know people in the seminar, and what I realized over you know my presentation here that people in at least in eastern region are very reachable. तो आपको सबसे रिलेशनशिप बनाना है, यू नो जस्ट डोंट बी इन आइसोलेशन। आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे ना तो यू विल सी लॉट ऑफ प्रोफाइल्स, मतलब यू हैव टू मिरर अ प्रोफाइल। मतलब मैंने एक प्रोफाइल देखी थी यू नो व्हेन आई जॉइंड केसोराम, आई वाज वेरी क्विक, हेस्टिली मैंने ये डिसीजन लिया था कि भाई मेरे को केसोराम ज्वाइन करना है। मुझे उस समय आई थिंक 6-7 साल पहले 12 लाख का पैकेज लगा था, आई वाज वेरी हैप्पी यार, 12 लाख कलकत्ता में मिल गया, आई एम डन, मेरा घर यही है। बट उस टाइम यू नो द हेस्टी डिसीजन दैट आई टुक, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरी डिसीजन गलत थी, बट यू नो व्हेन आई जॉइंड HUL आई रियलाइज उनका स्टार्टिंग पैकेज 20 लाख का होता है, राइट? तो मतलब आप हमेशा यू नो लोग ऐसा बोलते हैं कि यू नो फटाफट फटाफट ग्रास्प कर लो, जो मिले ले लो, मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स बिकॉज जॉब मार्केट इतनी खराब है, जॉब नहीं मिलेगी, जो मिल रहा है 6 लाख 7 लाख, अभी तो लोग 6-7 लाख का पैकेज भी लेते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यू शुड नो योर केपेबिलिटी। अगर आपको लगता है यू कैन डू मच बेटर, स्टे, मतलब फुट पे रहो, मतलब इतना यू नो अग्रेशन और इतना हड़बड़ी मत दिखाओ, क्योंकि यू नो आई बिलीव दिस इन लाइफ बिकॉज जो आपसे छूटता है ना कुछ अच्छा आने के लिए छूटता है। मतलब आज आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी 12 लाख की पैकेज चली गई, यार मैं क्या करूं, एक्सेप्ट कर लूं या नहीं करूं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा लिखते हैं 6-7 ऑफर लेटर होता है, बट व्हेन आई वाज इन दैट पोजीशन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर वन। मतलब मेरे को ऐसा लगा था यार एक मिल जाए मैं फटाफट ज्वाइन कर लूं, है ना? बट ऐसा मत करना बिकॉज सी आपने CA क्लियर किया है तो ट्रस्ट योर सेल्फ। मतलब अगर आपने इस इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो कुछ तो आपने है ना, मतलब आई थिंक वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं CA एग्जामिनेशन को, तो आप में कहीं तो ये गेम है, मेंटली आप स्ट्रांग हो, हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ हो, तो यार वाई सेटल फॉर लेस? मतलब एक्सप्लोर ऑल योर अपॉर्चुनिटीज बिफोर यू से यस, राइट? So I was in Kesoram. I did a lot of learning there. I don't regret joining Kesoram. I think that was the best decision that I could have taken that time because जो learning आपको एक normal company में मिलेगी ना, a promoter based company में, वो आपको MNCs में भी नहीं मिलेगी, to be very honest. केसोराम में उन्होंने पूरा आपको बेस से सिखाया, मतलब एंड इनिशियल डेज व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पहले आप ऐसा मत सोचना कि यार काम मिले ना मिले मेरे को पैसे मिलने चाहिए, नेवर डू दैट। बिकॉज ये मेरे को अब रियलाइज होता है, मतलब व्हेन वंस आई एम सेटल्ड इन माय करियर एंड आई एम डूइंग वेल, आई एम अर्निंग वेल, अब मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि उस टाइम अगर मैं सेटल, मतलब उस टाइम अगर मैं खाली ये सोचती ना कि यार मेरे को पैसे दे दो बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो अभी मैं सर्वाइव नहीं कर पाती HUL में। Because that learning that I have, no, my base is so strong that any corporate that I go now, I know how the company works. You know, company में divisions क्या हैं, accounting क्या कर रहा है, you know, अगर आपको ऐसा लगता है कि खाली एक एक टीम बैठ के काम करती है, नहीं, देर आर मल्टीपल टीम्स इनटू अ कंपनी, सेक्रेटेरियल, NSE में क्या फाइलिंग्स हो रही है, क्या चीजें हो रही है, अगर आप वो समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी लर्निंग होती है। मतलब जब भी आप ज्वाइन करते हो, आई थिंक Uma Kanta has a question. I think, sir, if you want to ask, you can just unmute yourself and ask. I'm audible, right, Uma? You've raised your hand. Yeah, you are audible, ma'am. Okay, I think उन्होंने hand raise किया था, तो I thought if he has something to ask, he can ask. I think वो गलती से हो गया होगा. We can continue and if she has any questions, she can write down in the chat box. Okay, great, sure. So I think how are you doing it? Do you want me to stop for questions now, or we do it at the end of the session? How do you want to do it? Okay, so I think I'll just continue. अगर आपको कुछ questions हो तो we can, you know, start taking that once we are done with the session. Okay, so I think coming to your preparation after you qualify CA, तो आपका Excel बहुत strong होना चाहिए. I think institute is kind enough कि हमारी वो sessions होती हैं
जहाँ पे 15 दिन आपको एक्सेल बेस्ड ट्रेनिंग, टैली बेस्ड ट्रेनिंग वगैरह आपको दिया जाता है. तो गाइज प्लीज टेक दैट सीरियसली. एंड अगर आप प्रॉपर आर्टिकलशिप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आप ऐसी आर्टिकलशिप कर रहे हो जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज और मैं इवनिंग में थी, तो मेरा आर्टिकल एक्सपोजर बहुत बहुत क्योंकि आपको पता है कलकत्ता में 11 बजे, 10, साढ़े 10, 11 बजे काम स्टार्ट होता है एंड हमारा कॉलेज 4 बजे स्टार्ट होता था. तो मेरी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, एक्सेल में मुझे इतना काम करने का मौका नहीं मिला. मतलब आई वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन एक्सेल. मैंने फाइलिंग्स वगैरह तो बहुत की थी, बट एक्सेल, पीपीटी बनाना, वर्ड पे काम करना, डॉक्यूमेंट्स रीड करना, वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था. सो बिफोर यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बी श्योर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इतने पैसे, मतलब मैं सीए इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग से नहीं सीख पा रही हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, और 15 दिन का कोर्स में मुझे लगता है कि मैं एक्सेल बेस्ड स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही हूँ. इन्वेस्ट, यूडेमी पे कोर्सेज हैं एंड लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्सेज है. आप इन्वेस्ट करो प्रॉपर ट्रेनिंग्स में. या अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ज्वाइन करना चाहिए, देयर लॉट ऑफ फर्म्स इन कलकत्ते में, ईस्टर्न रीजन में इतने फर्म्स है, कहीं पे आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए जहाँ पे वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे. क्योंकि जब आप एक्चुअल काम करते हो ना, तभी आपको समझ आता है. वो 15-20 दिन का एक कोर्सेज होता है. आप बेसिक एक्सेल, मैं ये नहीं बोल रही यू शुड बी एकदम प्रॉपर, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए एक्सेल में, एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई, सब कुछ आना चाहिए. बट गाइज बेसिक आपको आना चाहिए. और प्रॉपर वी लुकअप, एक्स लुकअप, ये सब लगाना तो आपको आना ही चाहिए. बिकॉज एवरीथिंग इन कॉर्पोरेट is about Excel. To be very honest, if I tell you, if you do well in your corporate world, yes, if you're good in Excel, if you're good in your speaking skills, and uh, invest in courses which give you exposure to Microsoft. I think Tally उतना काम नहीं आता है, to be very honest. अगर आप फर्म वगैरह में कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो तो Tally तो कहीं नहीं है. एंड एसएपी का आपको जो भी ट्रेनिंग मिलेगा वो इन हाउस मिलता है, बिकॉज कंपनी का अपना अपना कस्टमाइजेशन होता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एसएपी. बट येस, एक्सेल गेम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज डोंट थिंक कि मुझे सब पता था. मैंने अपना शेयर ऑफ स्ट्रगल किया है. आई स्ट्रगल्ड विद एक्सेल बिकॉज मैंने जिन लोगों के साथ ज्वाइन किया कैंपस में, उनका एक्सेल गेम इतना स्ट्रॉन्ग था. एंड देन आई इन्वेस्टेड a lot of time on YouTube and Excel Udemy courses to get myself equipped with that. I think 15 दिन का कोर्स होता है, कुछ 3-3,500 रुपए लगते हैं. तो वो इन्वेस्ट करना, उसके लिए कंजूसी मत करना. सो माइक्रोसॉफ्ट गेम स्ट्रॉन्ग रखो, एक्सेल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रखो. एंड उसके बाद आपको अपना स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत काम करना है. मतलब व्हेन यू लुक एट एमबीएस एंड यू लुक एट सीएस, आपने बहुत जगह से सुना होगा कि सीए का बहुत ज्यादा मेहनत होता है फ्रॉम कंपेयरिंग इट विद एन एमबीए. बट बहुत जगह आप ऐसा देखोगे कि देयर इज पे डिस्पैरिटी. मतलब सीए को 6 लाख रुपए की पैकेज मिलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट एमबीए सीकिंग गुड. बिकॉज आपका स्पीकिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्ट्रगल एंड बहुत डर लगता है, नर्वसनेस होती है बोलने से पहले, एंड सबको होती है यार, ये सबको होती है. बट यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट प्लेटफॉर्म. एंड आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली कि आपको एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही चाहिए जहाँ पे आप बोल सको. बट यू कैन ऑल्सो टेक पोएट्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं जब जहाँ पे आपको स्टेज पे जाके खाली बोलना है. मतलब नॉट दैट यू इंटरेस्टेड इन पोएट्री, बट यू कैन जस्ट रीड आउट समथिंग जस्ट टू रिमूव दैट पब्लिक स्पीकिंग का फियर, राइट? तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है करना. एंड आई थिंक मेजरली आपको अपना करियर पाथ खुद डिजाइन करना है. मतलब डोंट गेट स्टक. बहुत लोग अभी ऐसा पूछते हैं, लिंक्डइन पे मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं दैट यू आर इन एचयूएल, यू मस्ट नॉट बी प्लानिंग टू लीव द कंपनी, राइट? मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी तो लाइफ सेट है, 20-25 साल आपका एचयूएल में निकलेगा, बिकॉज एचयूएल इज अ वेरी गुड कंपनी, एम्प्लॉयर नंबर 1 है. एंड आई बैक दैट बिकॉज आई हैव माई एवरी डे एट वर्क इज अ ड्रीम. Facility wise, pay wise, हर चीज wise, it is really really good. And but I am not saying that I will not switch, because staying और switching, मतलब आपको जब आप switch करते हो ना, you increase your value. Even today, I think मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी that I'm not interviewing. I keep interviewing. मतलब it's not wrong to see what you're worth. I mean अलग अलग कंपनीज में से, because I still think कि जितनी ज्यादा मैं इंटरव्यूज दूंगी उतना ज्यादा मेरे को अपना नॉलेज कहाँ कम हो रहा है. बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हो ना, आप अपडेटेड नहीं रह पाते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ गए, फॉर एग्जाम्पल आई मीन कोर अकाउंट्स, तो मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज है,
बट इफ यू टेल मी टैक्सेशन से मैं पूरी अपडेटेड हूँ कि नहीं, नो आई एम नॉट अपडेटेड, सॉरी। मतलब बजट आता है तो मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे पता रहता है, बट नॉट कोर इनटू इट, जितने प्रैक्टिस वाले रह पाते हैं, राइट? बिकॉज उनका जॉब है ये प्रॉपर देखते रहना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या नए लॉज आ रहे हैं, बट हमको इतना नहीं रहता है। इट इज रेलिवेंट टू माई वर्क स्पेस, मतलब अकाउंटिंग में मेरे को अगर कुछ अपडेशन कराना है, कुछ ऑटोमेशन कराना है वहां पे, राइट? तो वो चीज, बट इसीलिए आपको इंटरव्यू देना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मेरे को 40 लाख रुपए पैकेज मिलता है, तो मेरे को ये देखना है कि यार अभी मेरा मार्केट में वर्थ क्या हुआ है, मेरा 5 साल हो गया है कॉर्पोरेट में, अभी एम आई स्टिल वर्थ 40 लाख? शुड आई एक्सप्लोर, शुड आई गिव इंटरव्यूज अलग अलग कंपनीज में, शुड आई अंडरस्टैंड कि मेरा और क्या वर्थ हो सकता है? यस, मतलब सी, देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, राइट? मतलब अगर आप देखो जैसे अभी आई एम टॉकिंग मोर अबाउट एचयूएल बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ग्रो इन एचयूएल। बहुत लोग 20-25 साल एचयूएल में रह के आज सीईओ सीएफओ पोजीशंस पे बने हैं, बट देर आर ऑल्सो पीपल जिन्होंने स्विच कर करके अपना पैकेज इतना बढ़ा लिया दैट दे आर अर्निंग मोर देन दैट, राइट? सो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि तुम ज्वाइन करो एक कंपनी और 6 महीने में छोड़ो, पैकेज डबल करो, निकलो। वो कोई भी इंटरटेन नहीं करता, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग एट योर रेज्यूम। वो बोल रहे हैं यार ये बंदा तो 6 महीने कहीं रुकता ही नहीं है, मैं इसको क्यों हायर करूँ? बिकॉज कंपनी इज इनकरिंग कॉस्ट ऑन यू, राइट? आपका नोटिस पे वो दे रहे हैं, आपके लिए वो मेडिकल का जो भी एक्सपेंसेस है कर रहे हैं सॉरी, एंड आपके लिए वो इतना कुछ करे, तो दे विल वांट कि यार एटलीस्ट एक डिसेंट पीरियड तो तुम रहो यार, 2-2.5 साल 3 साल तो तुम उस रहो उस कंपनी में। बट डोंट थिंक कि आपको एक मेंटल प्रेशर है कि कंपनी ने मेरे लिए इतना किया तो मुझे रुकना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। बिकॉज आपको अपना ग्रोथ देखना है, राइट? मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको स्टैग्नेंट होना चाहिए। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट विल बी बेस्ट फॉर यू, यू कैन नॉट टेल मी व्हाट विल बी बेस्ट फॉर मी। सो आई थिंक व्हेन पीपल से कि यार रुक जाओ एक कंपनी में अब 20-25 साल, मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था कि तुम अभी एचयूएल में जॉब कर रहे हो, आई थिंक 20-25 साल शादी होगी, बच्चे होंगे, आई थिंक अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, यू आर सेट। बट गाइज वो एडवाइस उनके लिए शायद सही थी, बट वो मेरे लिए नहीं होगी, राइट? तो ये स्टैग्नेंट मत होना कहीं पे भी, बिकॉज वंस यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो कि मेरी सैलरी आ रही है। जैसे नीरज ने बोला, ही वाज ही गॉट रियली ल्यूर्ड बाय द फैक्ट कि अच्छी पेचेक मिल रहे है, अच्छा फैसिलिटीज मिल रहे हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आई नीड टू सर्च फॉर वर्क। आप प्रैक्टिस में होगे तो आपको रोज टेंशन रहेगा, यार मुझे नया क्लाइंट एक्वायर करना है। आप जहाँ पे भी जिससे भी मिलोगे ना, आपको ऐसा रहेगा कि यार दिस इज माई प्रोबेबल कस्टमर, मे बी मैं इसका आइडिया मैं अब ले लूंगा। तो आपके माइंड में हमेशा वो चलता है। बट जॉब में क्या होता है ना, यू आर रिलैक्स्ड कि यार ये मेरा काम है, मैं करूंगी, मुझे सैलरी मिलेगी, हम डन। बट ही राइटली सेड दैट यू शुड बी एंजॉइंग दैट। अगर आप वो खाली पेचेक के लिए कर रहे हो ना, तो आप लास्ट में इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि आपको निकलना पड़ेगा। आप सोचोगे यार मेरे से नहीं हो पा रहे, एंड दैट इज द रीजन आई थिंक प्रोबेबली इतने सारे सुसाइड्स के केसेस एंड एवरीथिंग आते हैं, बिकॉज वो इम्पैक्ट करता है यार। मतलब तुम घर आ रहे हो, तुम्हारे वो फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल रहे हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, पेचेक के लिए मेरे को ऐसा करना पड़े। डोंट डू दैट। मतलब सी, everything in life is not about money. It is about your job satisfaction. When I say you are becoming a CA, yes, you want to earn good, you want to have a reputation, you want to do well for your family, you want to do well for your friends, you want people to know that she is doing well for herself in life. But remember that everything that you're doing is not for a social image. You're doing things for yourself. At the end of the day, you should go to bed thinking, yaar, I'm satisfied with what I'm doing. So when you're getting ready or you're taking a job, right? मेरे को बहुत clear था कि मेरे को Big Four में काम नहीं करना है. I don't know if anybody from Big Four here, I think that will spark a controversy, but I was really clear कि मुझे Big Four में नहीं करना है, because I'd seen their work culture, इतना pressure काम का, इतना सब कुछ. And my advice would also be that don't start your career with a Big Four. Never do that, because मैंने बहुत लोगों को देखा है कि Big Four से start करके उनका corporate life, बिकॉज वंस यूर इन अ बिग फोर ना, आपको जॉब स्विच में भी बिग फोर ही लेना पड़ता है, बिकॉज उन जॉब इतना स्टैग्नेंट हो जाता है ना वो. तो मेरा एडवाइस हमेशा इंडस्ट्री रहता है, बिकॉज आई एम लकी, आई जस्ट गॉट लकी, बिकॉज मेरे को भी ऐसा आइडिया नहीं था, बट बिकॉज मैं इंडस्ट्री से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया थैंक्स टू ICAI. एंड देन आई रियलाइज कि यार दिस इज अ वेरी गुड स्पेस, बिकॉज आपको इतनी सारी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती है ना. मैं पहले सीमेंट इंडस्ट्री में थी, देन मैं विस्कोस फैक्ट्री में थी, then I was in Surf Excel. For HUL, I was in Surf Excel factory. Then I was in ice cream factory. Then I was in coffee factory. तो मैंने इतने segments देख लिए ना, मतलब एक कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करके, कि
it's really amazing. मतलब you're looking into the production process, पूरा FMCG कैसे वो product बन रहा है, packing process, मतलब not only from finance perspective but also from engineering and सारे packing lines वगैरह देखना, तो I think बहुत बहुत help करता है वो चीज़. I think बाकी आई थिंक मेजरली आपको यही करना है, आपको रेडी रहना है इंटरव्यू वाइज एंड प्रेपरेशन वाइज. And now I think I'll open the floor for any questions. And if you want me to cover something else that you want me to, discuss on, or maybe you want to know something about how to apply for these companies or interview process, we can just open the floor for that. I think that was all from my side. I don't know if I missed important pointers or not, but I've tried to cover everything that I thought was important to for you to know कि आपको मतलब एक्सेल गेम स्ट्रांग रखना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, एंड आपको अपना लिंक्डइन एक्टिव रखना है. मतलब ये नहीं कि जब जरूरत है तभी मैं उससे बात कर रही हूँ. ट्राई एंड मेंटेन दैट रैपो कि भाई आज मेरे को नीरज से काम है या अमित से काम है तो मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, तो वो लोग को भी समझ में आता है यार इसको काम है इसलिए कर रही है. बट ट्राई एंड मेंटेन दैट कि यार टुडे आई गॉट टू नो अमित एंड नीरज एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि यार not only for work perspective but otherwise also we stay in touch. So I think that is very important. एक PR maintain करना, अच्छे लोगों से connect करना, बातें करना, you learn so much. Your company is very important. मतलब I think अगर आप उन लोगों के बीच में बैठ रहे हो ना who are very satisfied, यार ठीक है 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ठीक है, ऐसा कभी मत करना. Always have people who are ambitious, who are good. एक मिरर बनाओ कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है एंड कौन मेरे को गाइड कर सकता है, हु इज द बेस्ट हु कैन गाइड मी. तो आई थिंक अगर आप वैसा रखोगे ना अपने लाइफ को, ऑलवेज कीप somebody who keeps motivating you and not somebody who is satisfied. मतलब कोई आपको बार बार बोलेगा ना यार इतना कर लिया तूने लाइफ में, अब छोड़ देना, अब रिलैक्स कर, इट्स टाइम टू एंजॉय नाउ. don't have people like that around you. Always try to have people who constantly push you. मेरी मम्मी हमेशा मेरे को पुश करती है. When I was in Kesoram, my father was very satisfied कि यार अच्छे पैसे आ रहे हैं एंड अच्छा जॉब है, अच्छा कंपनी है, लोग इतना मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. बट माई मदर ऑलवेज वाज लाइक क्यों क्यों नहीं करना है, ट्राई करो, यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर बेटर, यू कैन डू दैट. और उनका जो नैगिंग होता है ना एक टाइम पे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि यार कर तो लिया, सीए कर लिया है, पढ़ाई कर ली है, जेवियर्स कर लिया है, स्कूल टॉप कर लिया, अब तुमको क्या चाहिए, मैं बैठती हूँ ना आराम से. बट that pushing, somebody who's constantly pushing you ना, you don't even know कि यार तुम में ये क्वालिटी भी है. तो have people who motivate you, who constantly push you, criticize you, उनको अपने साथ रखो. राइट मतलब मेक योर सर्कल, इन योर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो. मतलब आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपसे बहुत बेटर है. मतलब ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ कि यार तुम जिससे बेटर हो. आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो यार मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली टैलेंटेड है अकेडमिकली, और वो 3-4 कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं कितना पीछे हूँ. मतलब मैं खाली सीए कर रही हूँ, लोग 4-4 डिग्रियां ले रहे हैं, तो आई शुड डू समथिंग कि सीए कोर्स में देयर इज नोबडी हु डज बेटर देन मी. या मे बी आई कैन ऑल्सो स्टार्ट समथिंग, आई कैन स्टार्ट स्टडिंग समथिंग, मैं सीए के इतने सारे कोर्सेज है वो करूँ. So I think that motivates you a lot. Sit with people, sit on a table where you are always, motivated to do better in life. I think a question है, what is the decent period? I think Ramesha has asked, what is the decent period of stay in one organization as per your opinion? I think 2.5 to 3 years is decent. I think उससे पहले छोड़ना, a company, you can do that अगर बहुत work culture बहुत toxic है और आप नहीं रह पा रहे हो and you're not learning, you should leave. I think for me, my decent period is till the time I'm learning and I'm earning well. I think दो ही objective होना चाहिए. It should not be either or. दोनों objective अगर आपका parallelly move कर रहा है, if you think you're learning every day and if you think you are being paid for that equally, the work that you're putting in, you should stay in that organization. And जैसे फॉर एग्जाम्पल केसोराम में आई वाज लर्निंग बहुत ज्यादा, मतलब माई लर्निंग वाज लाइक नेक्स्ट लेवल. मैंने केसोराम में राइट्स इशू देख लिया था, मैंने डिबेंचर, उन्होंने फंड रेजिंग कराई थी, डिबेंचर इशू देख लिया था, मैंने सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने एक्सपोजर दिया था. माई लर्निंग वाज अमेजिंग. आई हैड अ रियली गुड टाइम फॉर 2.5 years, but eventually I realized that I'm not being paid as per what I should be paid, because I was putting in a lot of hours. And ultimately guys, तुम मानो ना मानो, तुम्हारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसा भी होता है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए जितना किया है तुम्हें वो वापस देना है, राइट? तो उसके बाद व्हेन आई थॉट कि
मेरे को अब लग रहा है कि आई एम नॉट बीइंग मॉनेटरीली बी satisfied with that, I started switching. I started looking for roles. But I think 2.5 3 years तो आपको देना चाहिए, मतलब 2 years अगर आपको लग रहा है पे भी सही है और लर्निंग भी है, तो बहुत हड़बड़ी भी करना गलत होता है, कई बार वो भी उल्टा पड़ जाता है. टेक योर टाइम, मतलब कहीं कोई रश नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है कि आई थिंक आई हैव आंसर्ड. अभी सुदीप्ता का क्वेश्चन है, articleship is going totally in statutory audit and GST litigation. Where should I go? Where should I go, firm or industry? So Sudipta, I think I will recommend industry because I have had a good experience in industry and बहुत लोगों को ऐसा होता है कि फर्म भी करते हैं, जैसे like Neeraj is an example in front of us. He eventually realized that he can do much better. He was not satisfied with his job. His only reason to leave the corporate world was कि job satisfaction नहीं आ रही थी, and I think that is the boldest thing to do कि आप अपना job पे fixed पे छोड़ के आप move out कर रहे हो. And see firm में there is immense scope, आप एक proper, अगर आप मैं बोलूँ कि firm better है या industry better है, आई कांट से दैट बिकॉज फर्म में देखो अभी मेरे पास एक फिक्स्ड पे है, अगर मैं 40 पर कमा रही हूँ तो मेरा वो फिक्स्ड है. बट एज अ इफ आई डू अ फर्म इनिशियली मे बी मैं नहीं कमा पा रही हूँ, बट इवेंचुअली मे बी यार मेरा 4-5 करोड़ का टर्नओवर हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट मी बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्री एंड मी बीइंग फ्रॉम spending 5 years in the corporate world, I think I am in a good space now. I think I am satisfied with what I am doing. So Sudipta, please trust what you want to learn in life and what you want to do in life. एंड अगर लॉन्ग टर्म सोचो आपको क्या इंटरेस्ट कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली 5 years डाउन द लाइन या पे चेक डज नॉट मैटर, कि भगवान की दया से आपने जो डिग्री ले ली है आपको इतने पैसे आएंगे ना कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा इवेंचुअली. मतलब इनिशियली आई नॉट से, इनिशियली 2-3 साल बहुत क्रेज रहता है पे चेक का, बट डाउन द लाइन आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पैसे तो कमा ही लूंगी, बट मुझे क्या इंटरेस्ट कर रहा है, मुझे क्या हैप्पी मेक कर रहा है, राइट? सो ऑलवेज ट्राई एंड चूज व्हाट विल मेक यू हैप्पी इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज इंटरेस्टिंग यू. अगर जीएसटी में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स आपको कंपनीज में भी वहीं अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे आप जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठ सको. जस्ट डोंट गो लाइक आई सेड कि मतलब ऐसा मत करना कि आपको फर्स्ट ऑफर लेटर आया और आप उस पर टूट पड़े. अनटिल एंड अनलेस आपका ड्रीम कंपनी है या पीएनजी का आया या आईटीसी का आया, वो अलग बात होती है पूरी. बट ऐसा नहीं कि कोई भी मीडियोकर आप बस कि इस डर से कि यार बेटर मिलेगा नहीं मिलेगा. और वो बहुत प्रेशर करते हैं गाइस कि विद इन 2-3 days आप हमको एक्सेप्टेंस दो, वी विल नॉट वेट, बिकॉज दे ऑल्सो नो ना कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एवरीबडी इज एक्सप्लोरिंग, राइट? वो बहुत प्रेशर करेंगे, तुम 2 दिन में बताओ नहीं तो मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर कैंसिल कर दूंगा. बट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. अगर आपको लग रहा है यू डिजर्व बेटर, यू शुड गो फॉर द बेटर. मतलब टाइम लगेगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम तुरंत तुम्हें मिल जाएगा अच्छा जॉब, बहुत टाइम लगता है. It's not very easy, and that's why we say that once you clear CA, the real challenge is starting now, right? So you have to be on top of the game. मतलब don't take things lightly, don't अपने आप को उससे स्ट्रगल मत कराओ, बट बहुत लाइट भी मत हो. मतलब कीप दीज थिंग्स प्रिपेयर्ड. जो मैंने बोला बेसिक चीजें ही बोली यार, मैंने कुछ बहुत बड़ा चौड़ा नहीं बोला कि तुम बस स्टार्ट ही कर दो अभी से देखना नहीं, बट अपना सीवी रेडी रखो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, नेटवर्किंग करो, पीआर बनाओ, स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क करो, एक्सेल स्ट्रॉन्ग करो, जो चीजें तुम घर पे बैठ के कर सकते हो. और अगर तुम 2-3 घंटे भी दो ना पूरे दिन में, तो आई थिंक तुम बहुत अच्छा अचीव कर लोगे अगर रिजल्ट आने के बाद. So I think that is all from my side, and I hope this was helpful. I really hope that कि आप लोगों को इससे कुछ help मिलेगा. And of course कुछ और additional आपको जानना है तो I think we can open the floor. And otherwise I think that is all from my side. Thank you Amit, thank you Neeraj, thank you team EIRC for giving me this opportunity to come here and speak, because it's like a dream come true for me sitting here today as a CA, because this is something we all dream of ना कि CA का degree बस लग जाए नाम के सामने. So I think, thank you guys. Thank you for being patient listeners. Thank you for your questions. If you have anything else, we can, I think, discuss. Otherwise, I think over to you, Amit and Neeraj. Thank you so much, Divya, for this wonderful dedication on the subject matter, how to, take a journey from articleship to clearance of CA and then jumping into the corporate world. And again, how to, accelerate ourselves in the corporate world. Right. So, to go further down the lane, while I was listening to your deliberation, so I remember my days when I was into the corporate for early 3 years. Then I jumped into the practice after 3 years of corporate experience. So, what I felt, it is totally relative in nature.
If Hmm. somebody is of approach कि ठीक है मेरे को fixed income चाहिए, I'm not that risk taker and all, so they should Hmm. be in your corporate structure thing जहाँ पे एक salary आ रही है, Hmm. एक अच्छी growth है as you go by, and in respect of practice you never know, depending upon the market scenario, depending Hmm. upon the city you are in, depending upon your PR, depending Hmm. upon your technical skill, everything Hmm. matters. Like it is very relative in nature. So Right. again, I Right. will see that is totally an individual call depending upon the shoe they are in, Yes. their practical scenario. And with respect to the corporate journey we have discussed, I will Hmm. like to add one more thing. Hmm. Ki, the point is ki all things whichever been discussed might not be applicable for the CA articles. In Hmm. the articleship period, especially, we should only thrive for the learning part, because Yes. आज के डेट में the problem is that articles even finding this articleship period to be as a earning Hmm. opportunity rather than the learning opportunity. So I think Exactly. Hmm. this is the mindset we need to change. कि Hmm. articleship period is purely for the learning opportunity. Obviously, learning के साथ earning आ रही है तो what's harm in that? But the True. base should be, or the purpose should be learning the things. Right. And I think that's all. So with this, I will like to thank you, Divya, for accepting our invite and delivering such a wonderful interactive session on the corporate journey. And thank you, Neeraj, for this special addressee of the day, and especially, accepting that in very short span of time, and being available for EIRC and the profession. And thank you so much, all the participants, for your wonderful Yes. interactive session, the question answer round, and the interest on the subject matter. So, with this, I thank you all, and we will meet you again on the Golden Church next technical session. We know that the Golden Church are being initiated by the EIRC and our Yes. chairman VK Tulshan sir, and that Hmm. is happening every alternative day from Monday to Friday. And Hmm. we are conducting total 101 session. The first phase will Wow. be of sessions, and the second phase again will be of 51 sessions. So Hmm. there will be more than 100 speaker, more than 100 special addressee, and obviously the wonderful audience, just like Hmm. you people. Yes. So thank you so much, Divya ji, for this wonderful My session. pleasure. Thank you, Again, Divyaji. Wonderfully Neeraj ji, spoken. thank you so much, and thank you so much, the participant. And we will meet you again on Monday, that is 11th of August, with another speaker on another topic. Thank you once again, everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.